this one type of compounds. You have AgH2O whole twice. And then you have AgCN whole twice. Okay. So in this particular case, you can see that both the cation and the anion, both of them are complex compound. Okay. So, but the rules and everything will be still the same, that we will be naming the cation first, and after that we will name the anion. So in cation, before naming and everything, we have to calculate the oxidation state. No? So isko X liya aapne and Ag ka bhi X hai. So you have 2X because we have 2 Ag here, plus we have water. Water is 0 and Cn is -1. So 2 into 0 will be 0. So we don't have to take for consider water. When we take for cyanide, it's going to be 2 into -1, which will be equal to 0. So we can write 2x minus 2 is equal to 0. 2x is equal to plus 2, and x will be equal to plus 1. So this is the oxidation state of Ag. Ag is plus 1. Now after that, we will see what are the ligands here. So cation ke case mein, if you see, we have 2 water. So we can write it as diaqua. Right? Then we have silver. Diaqua, silver, 1. When we name the anion, in this case also you'll start with the ligand. So ligand kya hai hamare paas? Cyanido, and it is dicyanide. Dicyanide. Then we have silver again, but please remember that is anionic. तो silver नहीं लिख के क्या लिखेंगे? Argentate. Argentate, and you will write 1. Make sense? Yes, no, yes or no, please tell me, guys. What's the name? Yes. Write this down. Okay, hope you have written this down. Now we have to also understand how to do the opposite case, है ना? How to go from name to the formula. ठीक है? Name to the formula. Please see here, guys. The first case, here we have tetraamine, aqua chlorido, cobalt 3 chloride. So first of all, what we need to do is to write the complex pair. है ना? तो ये आपके पास पहले जो आ रहा है, that is cation. We'll write in the complex pair, what do we have? What is the central metal atom? It is cobalt. So we will write cobalt. After cobalt, you have tetraamine. So you have NH3 whole 4. Then you have tetraamine. Then you have aqua. Aqua is water. Then you have chlorido. So 1 chlorido. So Cl. And after this, you will write chloride. है ना? Cl. अब यहाँ पे बस देखिए, आपको एक चीज करनी है ना. Cl अगर 3 है, 2 है, कितना है वो पता करने के लिए what you need to check यहाँ पे कि कोबाल्ट का होगा ऑक्सीडेशन स्टेट +3. फॉर NH3 it will be 0. फॉर वाटर it is going to be 0. यहाँ Cl की वजह से कितना हो जाएगा? -1. Now what is the total oxidation state here? +3 -1, it is equal to what? +2. तो +2 बस यहाँ पे आप 2 लिख दीजिएगा. That's it. The total oxidation state of, you will calculate the total oxidation state of this complex ion. कितना मिल रहा है? +3 और -1 कितना मिला आपको? +2.
और क्लोरीन का जो होता है ना, क्लोरीन का अगर आप देखें तो क्लोरीन इज हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1, तो क्लोरीन का 1। तो अगर क्रिस क्रॉस याद है आपको ना, इन 11th स्टैंडर्ड यूज्ड टू डू MgCl है, तो Mg का ऑक्सीडेशन स्टेट 2, क्लोरीन का 1, है ना। Mg का वैलेंसी 2 होता है, सो 2 इधर जाएगा, 1 इधर जाएगा, द सेम थिंग वी आर डूइंग, है ना। कोऑर्डिनेशन में 2 आ रहा है, Cl का 1 है, तो यू विल प्लेस 2 देयर, द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी Cl2 आ जाएगा फॉर्मूले के अंदर। All of you guys understood this? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ट्राई दिस वन, B1, बी वाला ट्राई कीजिए, सेंड द आंसर ऑन माई जूम चैट में, नहीं व्हाट्सएप पे भेजिए, ठीक है। सेंड द आंसर माई व्हाट्सएप। गाइस 1 more minute, लेट्स सेंड योर आंसर, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। एक ही लिगेंड है इसमें बस, टेट्राहाइड्रोक्सिडो। पोटेशियम पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है? आई होप यू गाइस रिमेंबर दिस फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। गाइस सेंड योर आंसर्स। नहीं हो रहा क्या गाइस? टेल मी। Sir, 1 minute. Debit doing. थोड़ा उल्टा सीधा नहीं लिख दिया आपने, देखिए जरा। रचिता, सेंट्रल मेटल एटम किधर है, एलिगेंट किधर है? यस रचिता, यू अंडरस्टूड द मिस्टेक, यस और नो? Yes, sir. ऑल्सो वन मोर थिंग, पोटेशियम कितना होगा वो कैलकुलेट कीजिएगा ना। एक पोटेशियम जरूरी नहीं है ना, यू विल अकॉर्डिंग टू द वैलेंसीज एंड द चार्ज यू विल सी हाउ मेनी पोटेशियम आर देयर। और गाइस प्लीज प्रैक्टिस दिस दीस क्वेश्चंस, ओके। व्हेन यू आर एट होम यू हैव टू प्रैक्टिस, यहाँ सिर्फ क्लास में कर लेने से नहीं होगा। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या बस क्लास में जो चीज रहती है उसको कर लेते हैं फिर बस भूल जाते हैं।
If you are not going to revise, at least do whatever we are doing in the class. That's the least you have to do. अगर वो नहीं किया आपने फिर आप भूल जाएंगे, वो तो पक्का है. सबसे पहले तो जो क्लास में कराया जाए ना उसी को कीजिए, बट यू हैव टू रिवाइज इट वंस. एक बार घर में जाके आपको अगले क्लास. देखिए यार, मतलब इतना आसान ये तो होना चाहिए था आप लोगों से. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पोटेशियम. कितना पोटेशियम अभी हमको नहीं पता है, बट इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर वी हैव टेट्राहाइड्रोक्सिडोजिंकेट. ठीक है. सो व्हाट इज द सेंट्रल मेटल एटम? जिंक है. आफ्टर दैट ना लिगेंड आते हैं. लिगेंड क्या है? हाइड्रोक्सिडो. हाइड्रोक्सिडो इज गोइंग टू बी OH. एंड हाउ मेनी? 4. नाउ you have to calculate that what how many potassium ions would be there. उसके लिए जिंक पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है वो दिया हुआ है यहाँ पे. इट इज 2. OH कितना हो जाएगा? -1. तो 4 इंटू -1 इज इक्वल टू -4. तो +2 -4 कितना हो गया? दिस इज -2. तो इसके यहाँ पे व्हाट चार्ज वी आर हैविंग? वी आर हैविंग -2 चार्ज. उसको बैलेंस करने के लिए कितने के चाहिए? तो 2 के चाहिए ना, बिकॉज पोटेशियम पे +1 होता है चार्ज. So this will be the formula. Then you have potassium trioxalate aluminate. Again, potassium. How many potassium? We don't know right now. Aluminate is aluminium. Then trioxalate. Oxalate is C2O4. How many? Thrice. Now aluminium is having an oxidation state of +3. Oxalate पे charge होता है -2. 3 into -2 is equal to 6. So +3 -6 it is equal to -3. In order to balance this -3, how many potassium ions do we need? We need 3 potassium because potassium पे होता है +1. Then you have dichlorido bis ethane 1,2 diamine cobalt 3. So for this we will start. We have only coordination space. We will start with coordination sphere cobalt. Then we have dichlorido, that is Cl2 bis, that is again ethane 1,2 diamine, that is En whole twice. That's it we have to write. You don't need to write anything else. Okay. Then we have tetracarbonyl nickel. Tetracarbonyl nickel. Nickel is Ni. Carbonyl is CO. Tetra is 4. And this is the complex. Please write this down. Raise your hand once you're done. First one, this is for the second one, this is for the third one, fourth and fifth. Revise कीजिएगा, revise नहीं. Tell me guys. On the fourth one. Fourth one. So first of all, central metal atom cobalt, dichlorido. So 2 chlorines. Bis means 2. Okay, I was having this doubt on di tri tetra ligand के नाम के अंदर. Sorry. I was having this doubt on bis. Bis only. Okay. So bis is used when you अगर ligand के नाम में ही di आ जाए ना, di आ जाए, tri आ जाए, है ना, तो ligand के नाम की न्यूमरल प्रीफिक्स आ जाएगा नाम के अंदर ही. Then we don't use di. फिर हम di tri tetra नहीं यूज करते हैं उन ligands के लिए. We use bis, tris, tetrakis, pentakis, hexakis. अगर याद आया आपको. Yes sir. Okay. That bis is 2. I think yesterday we wrote this, no? कल की क्लास में लिखा था शायद हम लोगों ने. हाँ, बिस इथेन 1,2 डाइमीन है ना. अगर 2 ईएन आ जाए आपके पास तो है ना. एक एग्जांपल भी किया था हम. गाइस प्लीज रिपीट कीजिएगा. रिपीट नहीं कीजिएगा तो बहुत परेशानी होगी आपको. ठीक है, प्लीज रिपीट कीजिएगा. Raise your hand once you're done, guys. Also, like your cameras are off. Can you please turn your cameras on, all of you? Yusuf, Alisa, Deborah, Fadil, Fia, Mir is here, but Mir तो बिल्कुल कोई जवाब भी नहीं देते हैं. रचिता. Waiting. Fia and Mir. Fadil and Fia just waiting for you guys. Sir, I will on in a while, sir. Sorry, what Fia? I will on in a while.
अच्छा, your camera occupying. Are you done? Yes, sir. Okay, fine. Yeah, you guys can lower your hand. Now write the topic bonding theory. Bonding theories. ठीक है. अच्छा, बॉन्डिंग थ्योरी में देयर आर 4 मेन बॉन्डिंग थ्योरीज फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ठीक है. एक बॉन्डिंग थ्योरी आपने देख लिया, वर्नर्स थ्योरी, बट दैट इज नॉट वेरी मच अबाउट बॉन्डिंग. बॉन्डिंग के लिए आपके पास है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसमें हाइब्रिडाइजेशन वगैरह है, sp3, sp3d2, d2sp3, all of these things are there. Valence bond theory, VBT. Then second, which is more important, that is crystal field theory. CFT. Third is ligand field theory. Ligand field theory. ठीक है, LFT बोलते हैं इसको. And the fourth one is molecular orbital theory. That is MOT. In detail, you have to learn the first two theories, that is the valence bond theory and the crystal field theory. Ligand field theory and molecular orbital theory, we don't have to learn it, but ligand field theory की एक कंक्लूजन है जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ही इसको लगा के मतलब आपकी किताब में दिया हुआ. ठीक है. So it is basically a conclusion from ligand field theory that has been used in the crystal field theory in the NCERT. और लिगेंड फील्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का नाम जरूर मौजूद है आपके एनसीईआरटी टेस्ट में, इस वजह से आपको भी सर नेम से है ना पता होना चाहिए कि लिगेंड फील्ड थ्योरी कुछ होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कुछ होता है ना. एमसीक्यूज में अब आने के चांसेस ना बढ़ जाते हैं ऐसी चीजों. प्रीवियसली जब एमसीक्यूज नहीं आते थे तब इन सारी चीजें पता रहे नहीं भी रहे, जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है जो सवाल, लेकिन एमसीक्यू के ऑप्शन में अगर कहीं आ गया लिगेंड फील्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आपको भले ही सही आंसर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ना, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि लिगेंड फील्ड थ्योरी क्या है, और मतलब एक चीज होती है जो कि आपको पढ़नी नहीं ना. इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सबसे पहले हम लिखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. प्लीज राइट द हेडिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कि हम लोगों ने देख लिया है, फॉर ईच कोऑर्डिनेशन नंबर देयर इज अ स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन एंड देयर इज अ स्पेसिफिक ज्योमेट्री. वो टेबल आपको याद करना पड़ेगा. ठीक है. देयर इज नो इफ एंड बट्स. छोटा सा टेबल है, कोऑर्डिनेशन नंबर, द hybridization and the geometry. Now all of these geometry you have already seen in the previous class, that is 11th standard, है ना. जैसे अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होते हैं. एक तो sp3 होता है जिसमें की ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल. एटलीस्ट नाम याद होना चाहिए आपको, टेट्राहेड्रल आपने पहले कहीं सुना है. In coordination number 4 there is also one more possibility, that is dsp2 or sp2d, which is square planar. And then we have the fifth coordination number 5, यहाँ पे sp3d और dsp3, which is trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal. Then we have the sixth one, the coordination number 6, which is sp3d2 or d2sp3. One of these hybridizations are possible and the geometry in this case is octahedral. ठीक है. एक चीज तो ये आपको मतलब याद रखना चाहिए, है ना. यू हैव टू मतलब मेमोराइज करना पड़ेगा आपको, राइट. अभी नहीं, बिल्कुल बैठे बैठे तो सवाल कर करके आपको मेमोराइज हो जाना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो ऑप्शन है आपके पास, sp3 और या तो टेट्राहेड्रल या तो स्क्वायर प्लेनर. ठीक है. 5 में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो सकता है, sp3d या dsp3, वो बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, लिगेंड्स के ऊपर. इन कोऑर्डिनेशन नंबर 3 इट इज ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल, इट विल बी sp3d2 d2sp3, वो देख लेंगे.
बट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टेटल, इतना आपको याद हो जाना चाहिए। आई थिंक इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, पहले से भी आपने इसको पढ़ा हुआ है तो याद रहेंगी चीजें। चीज क्या है, the 3D series element and the electronic configuration for 3D series element. In 3D series element, what do we have? We have scandium, शक्ति, विक्रमण, फे, को, नी, कूजन। शक्ति विक्रमण फेको निकूजन, ऐसे याद कर लीजिए बिल्कुल। शक्ति विक्रमण फेको निकूजन। आई होप यू गाइस आल्सो रिमेंबर कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं, एटॉमिक नंबर बताया था कि शक्ति विक्रमण से स्टार्ट करेंगे तो शक्ति इज 21, दिस इज 22, दिस इज 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। चलिए कोई हमको ना स्कैंडियम का बताएं, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर स्कैंडियम 21, 1s2 2s2 करके बताइए जरा। आई विल गिव यू गाइस 2 मिनट्स। 2 मिनट से ज्यादा इसमें तो नहीं लगना चाहिए ना, 11वीं कक्षा की बातें हैं, 2 मिनट ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 1s2 2s2 करके बताइए, अपने नोटबुक में लिखिए एंड देन रेज योर हैंड। मतलब 2 मिनट के बाद हम पूछ लेंगे किसी, 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए किसी। प्लीज, स्कैंडियम 21 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सब लोग लिखिए जल्दी जल्दी। बात डन। थोड़ा टाइम बच रहा है। Let's see who else. बादल, ये जो स्क्रीन में चीजें लिखी है ना वो नहीं लिखना था, स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना था, वही लिखा है ना Yes, sir, आपने? yes, sir, I know. Yes, अच्छा sir. अच्छा, ठीक है। ओके, रजिता इज आल्सो डन। व्हाट अबाउट अदर्स गाइस, क्या हो गया? ओके, 1 मिनट इज आल्सो डन, ठीक है। बताइए जरा, बादल बताइए। Sir, is it 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1? रजिता, एनी चेंजेस और द सेम थिंग? Same thing, sir. सेम थिंग, ठीक है, दैट्स करेक्ट, वेरी गुड। नाउ इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म शायद आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि 6 4 10 और 10 8 18, राइट? 18 इलेक्ट्रॉन्स, इट विल बी फॉर आर्गन, सो आर्गन 4s2 3d1। याद आया? yes or no, please जल्दी बताइए, yes or no, turn your mic on and tell me। Yes, sir. आर्गन Yes, sir. याद आया सबको? ठीक है। सो सी, इन सब के आगे आर्गन होगा, उसके बाद 4s और 3d में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। सो यहां पे आपके पास होगा 4s2 3d1, यहां पे होगा आपके पास 4s2 3d2। आपको क्या ये नजर आ रहा है कुछ रिलेशन? हाँ जी बताइए, कैन यू गाइस सी दिस? अरे बोलो भाई, नहीं नजर आ रहा किसी को? No, sir. नहीं, नहीं नजर आ रहा। अरे 21 यानी कि s में 2 इलेक्ट्रॉन, d में 1 इलेक्ट्रॉन। 22 s में 2, d में 2। 23 s में 2, d में 3। कैन यू सी दैट? Yes, sir, yes, sir.
ठीक है, बस देखिए क्रोमियम और कॉपर का केस आपको पता है कि इट इज एक्सेप्शन, कि यहाँ पे 4s1 और 3d5 होता है बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड, और similarly in copper also it is 4s1 and 3d10 because of fully filled more stable configuration. बाकी सारे में उनके एटॉमिक नंबर ही आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे. their atomic number will tell you about the electronic configuration. Can all of you see that? Yes or no? Deborah, Fadil, Fia, Rajita, Yes, yes sir. or no? Yes, बाकी sir. लोग भाई Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है? Yes. ठीक है, 4s2 3d5, here it will be 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8, 4s2 3d10. ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है जब ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो हो. ठीक है, जब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, जीरो. अब उसके बाद आएगा मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सब में कॉमन. +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो जाएगा, 3d1. 4s है लेकिन 4s में इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां पे क्या हो जाएगा, d2, d3. यहां पे देखिएगा तो d4 हो जाएगा, s से एक इलेक्ट्रॉन गया और d से एक इलेक्ट्रॉन, तो d4, d5, d6, d7, d8. यहाँ पे s से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और d से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो d9 हो जाएगा ना, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में. और यहाँ पे d10. +2 इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट यू आर गोइंग टू गेट. +3 भी मिलेगा आपको, ऐसा नहीं +3 नहीं मिले, +3 भी मिलेगा. +3 में स्कैंडिनियम में d0, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8 एंड d9. या इसको लिखिएगा, इसे है ना, इसको लिखिए यहां तक. ये सारी चीजें ना प्री रिक्विजिट नॉलेज है जो आपके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के सवालों में ना स्पीड ले आएंगे. ये सारी चीजें अगर याद रही ना आपको, तो फिर आपके सवालों में स्पीड आ जाएगा ना. आपको एटॉमिक नंबर याद, आपको बस एटॉमिक नंबर याद रखना है, उसके बाद की चीजें बिल्कुल रटी रहनी चाहिए आपको, है ना. शक्ति विक्रमण और हैव सम काइंड ऑफ ड्रॉप्स ना. शक्ति विक्रमण 25 हो गया, फेक 25, मन में आप याद रखिए 25 है, फे आ गया तो 26 हो जाएगा. ठीक है, शक्ति विक्रमण इज 25, फे को 6. ओके, सो ऑल्सो रिमेंबर इट लाइक दिस. ऐसा नहीं कि शक्ति विक्रमण फे को निकोजन तो फिर शक्ति से स्टार्ट करें, शक्ति विक्रमण फे, अच्छा 26, ऐसे नहीं. शक्ति विक्रमण में 25, फे को निकोजन 26 से स्टार्ट होगा. ऑल्सो हैव दीज टाइप ऑफ थिंग्स सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू गाइस. जितना ज्यादा आप कंफर्टेबल रहेंगे, कंफर्टेबल कैसे रहेंगे, जब चीज सारी ऊपर से नीचे चीजें पता होगी आपको, तभी आप कंफर्टेबल रहिएगा ना किसी सब्जेक्ट में. तो बिल्कुल इन चीजों को रट के अपने आप को कंफर्टेबल बना लीजिए, उसके बाद की चीज आसान रहेगी. चलिए, प्लीज कॉपी दिस डाउन, रेज योर हैंड वंस यू डन. इफ यू हैव डाउट एनीवेयर हियर ना, तो प्लीज लेट मी. अरे किसी Sir, को अगर हाँ हाँ, बताओ बताओ. sir, can you repeat ये जो है शक्ति what? शक्ति विक्रमण, हाँ, then? फेको निकुजन. Okay, okay. नथिंग, इट डज नॉट मेक एनी सेंस, बट स्टिल आप 10 बार बोलिए, एक बार लिखिए, फिर 10 बार बोलिए, फिर एक बार लिखिए, 10 बार इस तरह करेंगे, याद हो जाएगा. Yes, sir. है इसमें और कुछ कहानी वहानी होती है. अब हमको कहानियां उतनी अच्छी नहीं लगती, बिकॉज कहानी में ना आदमी परेशान हो जाता है. ऐसे है कि एक तो बड़ा ही बेकार सा वाहियात सा एक है, किसी का सुन रहे थे. मन मन फेको नहीं दोबारा, पता नहीं ऐसे कुछ कुछ था. ठीक है ना. अब फेको में को आएगा ना, फेको नहीं दोबारा, नहीं में आपको लगेगा एनएच आएगा क्या. ठीक है, जिंदगी और पता नहीं क्या क्या था उसमें. बट आई प्रेफर सिंपल, अगर बन जाए तो. नहीं बनने के, नहीं बनता अगर कुछ नेमोनिक, देन वी हैव टू यूज सम स्टोरी. खैर, राइट दिस डाउन एंड रेज योर हैंड वंस यू डन. जल्दी लिखिए, जल्दी. और थोड़ा ड्राइंग मत बनाइए यहाँ पे ना, छापने की कोशिश मत कीजिए. आफ्टर यू आर डन टिल हियर ना, यहाँ तक अगर आपने लिख भी लिया है विद द एटॉमिक नंबर, इसको खुद लिखिए. जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, ये खुद से लिखने की कोशिश कीजिए, छापने की कोशिश मत कीजिए. ठीक है. एंड वंस यू डन, रेज योर हैंड.
Waiting for Aliza, Deborah, Fadil, and Fia. Everyone is done? You can speak here. Now, once we are done with this, we are going to apply valence bond theory into various elements, various complexes. But उससे पहले ना जो required knowledge है for valence bond theory is magnetic character. So let us suppose we have a complex. There is some complex, and for this complex, we have to know whether it is diamagnetic or it is paramagnetic. ये आपको information पता होनी चाहिए. Then only you will be able to comment and you will be able to apply valence bond theory on. ठीक है? Diamagnetic का क्या मतलब होता है? All electrons are paired. All electrons are paired, है ना? एक भी वहां पे unpaired electrons नहीं है. Paramagnetic का मतलब है there are unpaired electrons. ठीक है? So electrons are unpaired, यानी कुछ ना कुछ एक कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होना चाहिए. Then it is going to be unpaired. Now, generally speaking, what we can do, we can apply the valence bond theory and know about the hybridization and the geometry of a complex using the valence bond theory, if and only if we know the magnetic behavior or magnetic character, whether it is diamagnetic or paramagnetic. Paramagnetic में दो केस आते हैं, strongly paramagnetic, strongly and weakly. ठीक है? If it is weakly paramagnetic, then ध्यान रखिएगा, if it is weakly paramagnetic, then the electrons are paired. If it is strongly paramagnetic, then it is going to be electrons are unpaired. अब यही सारी चीजें, ये दिक्कत है ना, this is the problem, right? We have to do at least one experiment to understand what is the magnetic behavior, and then only we will be able to do what, and then only we will be able to tell whether it is sp2, sp3 क्या है, what is the hybridization, then only we will be able to understand what is the hybridization. This is what crystal field theory deals with. Crystal field theory इसी चीज को रख के it classifies the ligands which can pair the electron and it classifies the ligand which are not able to pair the electron. वो बात कीजिए crystal field theory में. From here you will write it is generally, please write with me. इसको नहीं लिखना है, this part don't write. Right here it is generally possible to predict the hybridization of a complex using valence bond theory if we know the magnetic behavior of complex. If we know the magnetic behavior of complex. ठीक है? Right till here. ठीक है? Now after this we will understand about two different complexes. एक है cobalt in which we have 6 ammonia, and then in the other case we are having, दूसरा केस है जिसमें हमारे पास है cyanide, the ligand cyanide, and cyanide ligand में we have 6 cyanide ligands. ठीक है? Please see here guys. You have cobalt, NH3 whole 6. Okay, this can be also asked in the form of a question. Is CO NH3 whole 6 3 positive is found to be diamagnetic.
Don't write now. Whereas cobalt Cn whole 6 3 negative is found to be paramagnetic. Now explain why. Explain यूजिंग वायलेंस बॉन्ड थ्योरी. ठीक है, इस तरह से पूछा जा सकता है. सो वी विल टेक दोनों को अलग अलग लेके हम लोग डील करेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव विच इज डायमैग्नेटिक. ये उल्टा लिख दिया क्या हमने? CONH3 होल 6 इज फाउंड टू बी डायमैग्नेटिक एंड CN नहीं, एक सेकंड, CN मत लिखिएगा. इफ यू आर नॉट राइटिंग प्लीज डोंट राइट. CN नहीं, फ्लोरीन. फ्लोरीन विल बी पैरामैग्नेटिक. ठीक है, चलिए. फर्स्ट ऑफ ऑल डायमैग्नेटिक का मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे. पैरामैग्नेटिक का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर नहीं होंगे. देयर विल बी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. पेयरिंग वहां पे नहीं होगी. ठीक है, ध्यान दीजिएगा गाइस यहाँ पे. हाउ टू सॉल्व दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे ट्रीट करेंगे इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कोबाल्ट. कोबाल्ट की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, दिस विल बी X और NH3 तो 0 है. So 6 into 0 will be equal to 0 and the charge on this complex is 3 positive. So X कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. So the oxidation state of cobalt, it is equal to what? It is equal to +3. अब आप लोग बताइएगा, in your copy it is present, what is the electronic configuration of cobalt 3 positive? The electronic configuration of cobalt 3 positive बताइए गाइस, कितना है? D में कितने इलेक्ट्रॉन है बोलिए? Cobalt 3 positive, cobalt 3 positive. All of you will be having, अरे माइक ऑन करके जल्दी बोलो भाई. Cobalt 3 positive. How much? अरे अच्छे से बोलिए रजिता, स्पेस बार मत यूज किया कीजिए. 4:3D7. No, cobalt 3 positive is only D6 ना फिया. 3 positive यार, 3 positive बोल रहे हैं. +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देखिएगा ना फिया, Yes, sir. है ना? ठीक है, इट विल बी D6. बाकी चीजें रहेंगी. दैट आर्गन इज देयर. 4s भी है जिसमें 0 इलेक्ट्रॉन है एंड देन यू हैव 3D6, है ना? इफ यू राइट आर्गन 3D6 दैट इज ऑल राइट, एवरीथिंग इज फाइन. हम बस आपको सब कुछ खोल खोल के दिखाना चाह रहे हैं. वांट टू शो एवरीथिंग कि 4s में 0 है, 3D में 6 है, आर्गन इज स्टिल देयर. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कोबाल्ट 3 पॉजिटिव. नाउ अगर D6 की हम बात करें, दिस इज योर D6. 1 2 3 4 5. ठीक है. Now in this case it is अभी अगर D6 की ऐसी बात करें हम, it will be 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे रहेगा. But as it is saying the कौन सा? Cobalt NH3 whole 6 3 positive is diamagnetic. Therefore the electron will be paired. इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? पेयर हो जाएंगे. ठीक है भाई, पेयर हो जाएगा. Now after pairing how it will look? 1 2 3 4 5. After pairing it will look something like this. 1 2 3 4 5 and 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए पेयर. ठीक है, यहां तक आपने कर लिया. इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपका काम आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर. टेल मी गाइस, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ कोबाल्ट इन कोबाल्ट NH3 होल 6 3 पॉजिटिव? क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर? अरे भाई साहब, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो भाई. 3+. हाउ मच रचिता? 3+. नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर. ऑक्सीडेशन स्टेट की Coordination. I see. कोऑर्डिनेशन नंबर. देखिए सारी चीजें ना घूम घूम के वापस आएंगी यार. आप लोग प्रैक्टिस करके रहा करो. ठीक है, अगर रिवाइज बिल्कुल नहीं कर रहे आप लोग, दिख रहा है. कोऑर्डिनेशन नंबर, ओहो इतना आना चाहिए भाई. रियली डिसअपॉइंटिंग नाउ. Coordination number, it is equal to 6. NH3 is a monodentate ligand. 6 into 1 is equal to 6. Now coordination number 6, तो आपके पास either it will be D2sp3 और sp3d2. It will depend on the number of vacant, मतलब जो भी आपके पास vacant रहे पहले. ठीक है, so coordination number 6 है number of vacant orbital. This is now VBT. ठीक है, number of vacant orbital is equal to कितना चाहिए हमको? 6 चाहिए.
ध्यान से देखिएगा, हाउ आई विल गेट 6, यहाँ पे 2 ही है आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पे तो आपके पास 2 है, इसको वैसे ही का वैसे लिखते हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, आई विल राइट दिस सॉरी as it is. Now this is 3D. ये क्या है आपके पास? This is 3D. We also know that 4s is there, 4s is present, but 4s is vacant. एक और ऑर्बिटल मिल गया आपको, क्या? 4s वाला. अब ध्यान रखिए, इन द फोर्थ शेल आपके पास s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा, f भी होगा. 4s is also possible, 4p is also possible, 4d is also possible, 4f is also possible. So if you have the 4s orbital, यानी फोर्थ शेल है ना, 4s का मतलब क्या? यू हैव द s सबशेल इन द, सॉरी, यू हैव द s सबशेल इन द फोर्थ शेल. फोर्थ शेल है अगर आपके पास, देन ऑब्वियसली आपके पास 4p भी होगा. This is 4p. Now what's going to happen? All of these are going to combine to make a hybridized orbital. 6 मिल गया ना, 1 2 3 4 5 6. Once we have got the 6, तो क्या मिला? पहले d2, then you have s और फिर p3. So the hybridization in this case is what? It is d2sp3. Does this make sense till here? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए. So can you explain again? Which part? Tell me. How you got 6 orbitals, 6 vacant orbitals? अच्छा, यहां तक आपको दो ऑर्बिटल ठीक है, चलेगा. Yes, sir. Yes. 4s भी चलेगा, क्योंकि 4s में थे इलेक्ट्रॉन, अभी वेकेंट हो गए. 4s तो कोबाल्ट के पास था, राइट? Yes, sir. रचिता, कीप योर माइक ऑन. Okay, okay. ठीक है. अब देखिए, फोर्थ शेल में आपके पास, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दिस फ्रॉम दी 11th स्टैंडर्ड और नॉट, कि फोर्थ शेल है आपके पास, तो दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज दैट, उसको n बोलते हैं. उसके बाद आता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर AQN, जिसको L से शो करते हैं. L इज इक्वल टू 0 to n-1. ठीक है, 0 यानी कि 0 भी होगा, n-1 कितना हो गया? 3. तो 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा और 3 भी होगा. 0 corresponds to S, 1 corresponds to P, 2 corresponds to D and 3 corresponds to F subshell. That means in the fourth shell आपके पास 4s भी होगा, 4p भी होगा, 4d भी होगा और 4f भी होगा. Now if you have the fourth shell, s भी है आपके पास, p भी है, 4s है तो 4p भी होगा. ठीक है, और 4s के बाद नेक्स्ट हायर एनर्जी किसका होगा? 4p का होगा. सो 4p इज हियर, और यहाँ पे 3 ऑर्बिटल 4p के, एक s का और 2 d के. ये आपको पता है ये चीज, Yes, रचिता? sir. Yes, sir. ये पता है ना? Yes, तो sir. यू अंडरस्टैंड नाउ ना कि 4p Yes, कहाँ I से आ रहा है. understand. Yes, I understand. ठीक है, D2sp. अब इसके बाद ना आखिरी चीज जो आपको करनी रहेगी एग्जाम के लिए, वो ये करना रहेगा आपको कि आप D2sp3 के पूरे 6 जो है ना, उसको एक साथ बना लीजिएगा. 1 2 3 4 5 6. ठीक है, आपने ये 6 बना लिए इस तरह से, और इसमें एरो दे दीजिएगा. और इसमें क्रॉस क्रॉस है ना, वो अगर आपको याद है लुईस डॉट स्ट्रक्चर 9th-10th में करते थे ना, तो उसमें क्रॉस देते थे अगर नया इलेक्ट्रॉन कहीं से आ रहा होता. तो और 6 आपके पास ये इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? आपके पास क्या है? NH3 है ना. सो यू हैव 6 NH3 व्हिच आर गिविंग दीस इलेक्ट्रॉन्स टू द मेटल एटम, और यही बॉन्डिंग है. दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड दैट इज प्रेजेंट. ठीक है, तो देखिए प्लीज इसको लिखिए और थोड़ा लिखिएगा. ऑल्सो द स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि ना हम लोग स्टेप्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे. सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इफ यू सी वी आर कैलकुलेटिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट. नंबर 1 क्या है हमारे पास स्टेप? ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, नॉट ऑफ द मेटल एटम, rather ऑफ द आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग. आफ्टर दैट वी विल सी वेदर इट इज डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, और उसके हिसाब से क्या कर लेंगे हम लोग? पेयरिंग और नो पेयरिंग, है ना. पेयरिंग का हम लोग डिसीजन ले लेंगे वेदर इट इज गोइंग टू बी पेयर्ड और नॉट. इफ इट इज डायमैग्नेटिक देन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल बी पेयर्ड. इफ इट इज पैरामैग्नेटिक द इलेक्ट्रॉन्स विल बी नॉट पेयर्ड. फोर्थ हमारे पास है कोऑर्डिनेशन नंबर, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल. वेकेंट ऑर्बिटल कितना चाहिए हमको? जितना कोऑर्डिनेशन नंबर. एंड देन अब अगर मान लीजिए ये डी नहीं मिलता ना हमको, 2D, तो फिर हम किसके पास जाते हैं? अगर 3D नहीं मिलता तो हम किधर जाते हैं? 4D के पास जाते हैं. तो 4D से हमको इलेक्ट्रॉन मिलता है, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है? sp3d2. बात समझ में आ रही है? yes or no? Please tell me, guys. अगर मान लीजिए यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होते ना पेयर्ड, जैसे मान लीजिए पेयरिंग यहाँ पे अभी तो हो गई, पेयरिंग नहीं होती तो दीज विल बी नॉट बी वेकेंट ना. ये तो वेकेंट नहीं है, तो हम लोग 4s को लेते, 4p लेते और फिर 4d का इलेक्ट्रॉन को लेते. ठीक है, दैट विल बी द केस इन द f वाले ऑर्बिटल्स, सॉरी फ्लोरीन में. या
सवाल कुछ नहीं है, वी आर एक्सप्लेनिंग दीज टू, दैट कोबाल्ट F6 3 नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक बट NH3 पॉजिटिव इज डायमैग्नेटिक। ठीक है, और इनिशियली आप लोगों को ना ये लगेगा सर यहाँ 3 पॉजिटिव और यहाँ 3 नेगेटिव है, इस वजह से डाया और पैरा हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले उसको आप निकाल लीजिए ब्रेन से, दैट द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन हैज नथिंग टू डू डायरेक्टली विद द पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक चार्ज। देख डायमैग्नेटिक नहीं बता सकते हैं। ओके, चलिए प्लीज राइट दिस डाउन, रेज योर हैंड, और उसके बाद यहां तक करके रखिए कोबाल्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक। ठीक है, आई विल गिव यू गाइस, अच्छा लिख लीजिए पहले, लिखिए लिखिए आराम से लिखिए। समझ समझ के कीजिएगा बिल्कुल, जहां समझ में नहीं आया ना कोई चीज, अगर आपको थोड़ा सा भी ऊंच नीच लगे, प्लीज आस्क मी। ठीक है, मान ना मानिएगा मत, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। Sir, can you say once again like a summary again? अरे क्या समरी, नहीं आप सोचो कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है आपको। ठीक है, या इट्स एन इंपॉर्टेंट स्किल टू हैव ना, कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है। Yes, पूरे sir. में पूरे में प्रॉब्लम बोलिएगा, हमको बहुत दुखी हो जाएंगे हम। पूरे में प्रॉब्लम है क्या फिया? No, sir, if you say again, it would be better. बेटर नहीं, आप कीजिए, कोशिश कीजिए, इसके बारे में तो हम बताएंगे, अभी तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम कराएंगे। ठीक है, आप लेकिन पॉइंट आउट करने की कोशिश कीजिए कि दिक्कत कहाँ पे हो रही है आपको। ठीक है, जहां पे भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है Yes, ना, वो sir. हमको बता दीजिए। ठीक है फिया? Yes, sir. So for paramagnetic, right? F will be in a bracket, right? नहीं नहीं, एफ ब्रैकेट में वो इंडिविजुअल है ना, एक एक एलिमेंट है ना, इस वजह से ब्रैकेट में। ब्रैकेट जनरली यूज होता है EN के लिए, NO2 हो अगर दो एलिमेंट मौजूद हो तब। ठीक है, इवन फॉर दैट मैटर दो लेटर नहीं, Cl के लिए भी ट्वाइस यूज हो जाता है ऐसे डायरेक्टली। देखिए अगर आप किताबों में अपने नोटबुक में देखिएगा तो समझ में आएगा, है ना। इवन फॉर Br अगर है तो ट्वाइस ऐसे यूज हो जाएगा, नो नीड फॉर द ब्रैकेट। पॉलीएटॉमिक में यूज होता है ब्रैकेट।
Sir, what is that 6NH3? सी दीज आर दी ऑर्बिटल्स ऑफ कोबाल्ट, है ना, ये जो यहाँ पे ऑर्बिटल्स हैं, सी दीज ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये तो किसके हैं, कोबाल्ट के हैं ना, and cobalt is bonded with NH3, coordinate bond बना रहा है. So these are the 6 NH3 donating a pair of electron on each orbital. Got it? These are donating Yes, sir. electrons. This is 6 NH3. That is needed, sir, that diagram. हमने देखा था कुछ टॉपर्स के पेपर में, वो बना हुआ था. Okay. ठीक है. CBSE releases all of these things by the way. Marking scheme, जो टॉपर होते हैं उनके पेपर्स होते हैं, राइट. सो वो आपके लिए रहता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या करें, अच्छा स्कोर करें. सी ऑल्सो ऑल्सो वन मोर थिंग, चीज याद रखिए ना, आपका स्कूल चाहता है कि आप कम मार्क्स लाएं, ना सीबीएसई बोर्ड चाहता है आप कम मार्क्स लाएं. ठीक है, इट समटाइम्स हैपेंस कि पेपर बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, बट दैट इज ग्लिच, इट इज नॉट अ रूल. ठीक है, वो कभी कोई एक ऐसा एग्जामिनर होता है जो उतना जो भी एक्सपीरियंस्ड अगर होगा ना, इफ समबडी वेरी एक्सपीरियंस्ड इज मेकिंग अ पेपर, दे विल नेवर मेक इट वेरी हार्ड, दे विल मेक इट इट ऑल्सो केमिस्ट्री पेपर इज ऑलवेज इजी टू मॉडरेट. जनरली बाकी बहुत सारे पेपर ऐसे, बायोलॉजी का पेपर भी आई थिंक ऐसे ही रहता होगा, इजी टू मॉडरेट. समटाइम्स जो आपका मैथ और फिजिक्स के पेपर में ना, अगर आप ध्यान दें कि सवाल को कभी कभी देख के लगता नहीं कि इतना हार्ड सवाल है, बट व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग इट, इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट. Sometimes it happens in chemistry also, if we take into consideration the physical, but usually things are quite easy conceptually भी chemistry में. थोड़ा सा इंट्यूटिव नहीं होता है, बोल सकते हैं, लेकिन बहुत हैवी लंबा मल्टी कंसेप्चुअल सवाल नहीं आते केमिस्ट्री में. तो मैथ और फिजिक्स का पेपर कभी कभी टफ हो जाता है, बिकॉज सवाल देख के टीचर को शायद लग रहा होगा कि आसान है, लेकिन डिटेल में थोड़ा सा हार्ड हो जाता होगा. ठीक है, तो केमिस्ट्री के पेपर में हम लोग निश्चिंत रहिएगा, इजी टू मॉडरेट ही आता है जनरली पेपर. चलिए, रेज योर हैंड इफ यू डन गाइस. तो आगे फिर कोबाल्ट F6 वाला भी कीजिएगा. आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक तो करके रखिए, कोशिश कीजिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, एंड देन टेल मी द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर कोबाल्ट इन दिस कोबाल्ट F6 3 नेगेटिव ऑन माय चैट. ठीक है, पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए आप लोग, ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, उसके बाद हम बोलेंगे हाँ ठीक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर लिखो कितना हो रहा है. उसके बाद देन डिसाइड करो पेयरिंग होगी या नहीं होगी. ठीक है, एक एक करके, लेकिन चैट में आप लोग बस हमको बताते रहिए. हाँ रजिता, यू कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करने, आई होप जिन लोगों को भी ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल गया है वो समझ रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा. I have not got oxidation state बाकियों से. Guys, please calculate state of cobalt F6. ये सरचिता, दैट इज करेक्ट. आप फिर इस तरह का डायग्राम बनाइए, एंड देन यू राइट वेदर इट इज पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, और फिर बताइए पेयरिंग होगी या नहीं होगी, वेदर पेयरिंग विल टेक प्लेस और नॉट टेक प्लेस.
व्हाट अबाउट अदर्स भाई? ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकल रहा है कि किसी से कोबाल्ट का? सेंड योर आंसर्स गाइस फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट. Yes, Aliza, very good. You can now write the electronic configuration. Yes, Deborah, correct, very good. Electronic configuration लिखिए फिर. Okay, चलिए guys, अब I will give you 2 more minutes, फिर हम आगे बढ़ेंगे. I will solve this cobalt F6 वाला. 2 मिनट जल्दी करो. आपके पास सीखने के लिए. हम जब पढ़ाने लगेंगे तब आप सीख नहीं पाएंगे. राइट नाउ वो जो सीखना था ना, वापस सारी चीजें रिपीट होंगी ना मेरी, तो अभी आपको सीखना है दिमाग लगा के. ठीक है, यू हैव 2 मिनट, यू हैव 2 मिनट्स टू लर्न. ठीक है, 2 मिनट सिर्फ आपके पास सीखने के लिए. अभी अगर आपने अगर दिमाग लगा के कर लिया. हाँ, अलीजा करेक्ट है, वेरी गुड अलीजा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग नाउ राइट दी ऑर्बिट. बिल्कुल ऐसे ही करना है कि एक स्टेप जैसे किया हमने ना, ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्रिएट. डी वाला आपने बनाया, उसके बाद ये लाइन लिखिएगा आप. पेयरिंग होगी या नहीं होगी, अगर पेयरिंग हो रही है नहीं, हाँ ठीक है. मीर हुसैन, वेरी गुड. ग्लैड मीर हुसैन, पहली बार आपने कुछ बोला है भाई. वेरी मच. आई मीन ये तंज नहीं कर रहे, हम जनरली थैंक्स करते हैं, तंज वंज नहीं करते हैं. ठीक है ना, आई एम नॉट बीइंग सार्कास्टिक. ओके, यहाँ पे आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है. कोऑर्डिनेशन सर, कैन यू रिपीट व्हाट आई हैव टू डू? इट वाज ब्रेकिंग. अरे ये करना आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, write the oxidation state, calculate the oxidation state and then write in the chat. Send it to me. Number of vacant orbital कितने होंगे? And according to the d orbital जो भी आपको यहाँ पे मिला है, आप कुछ करने की कोशिश कीजिएगा ना. आपके पास ज्यादा टाइम तो नहीं है, हम स्टार्ट कर देंगे आप करना. रिश्ता कहाँ तक हुआ आपका? Coordination number. कोऑर्डिनेशन नंबर तक किया आपने? चलिए वापस से देखते सारी चीजें. ठीक है, तो द कॉम्प्लेक्स दैट वी आर डीलिंग विथ हियर, प्लीज हियर गाइस. अब देखिए यहाँ पे ना, कोबाल्ट, हाँ मीर हुसैन करेक्ट है. कोबाल्ट F6 3 नेगेटिव. ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का यहाँ पे हो जाएगा x. F का होता है -1. सो x plus 6 into -1 will be equal to -3. So x will be equal to 6 minus 3, which is equal to +3. Electronic configuration will be same as that of the previous case. वहां पे भी क्या था, कोबाल्ट पे 3 positive. So it will be again argon. 4s will have 0 electron and 3d will be having 6 electrons. when 3d 6 है तो आपके पास इस तरह से आप बनाइएगा. 1 2 3 4 5 and 6. Then you will say, since complex is paramagnetic, pairing will not take place. Pairing will not take place. ठीक है, अब पेयरिंग अगर होगी नहीं तो उसके बाद अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखें, कोऑर्डिनेशन नंबर इट इज इक्वल टू 6. देयरफॉर 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स आर नीडेड. अब 6 वेकेंट ऑर्बिटल आएंगे कहां से, तो ध्यान दीजिएगा. ये तो 3D हो गया आपके पास कंप्लीटली ऑक्यूपाइड. देयर इज नो वेकेंट ऑर्बिटल इन 3D. सो 3D के बाद क्या आता है बोलो गाइस? व्हाट कम्स आफ्टर 3D? व्हाट विल कम आफ्टर 3D? 3D के बाद क्या है हमारे पास? वेकेंट. अरे भाई बोलो, 3D के बाद थर्ड सेल के बाद 4s. वेरी गुड. आपके Then पास क्या है? 4p. यस 4p. उसके बाद आएगा 4s. फिर उसके बाद आएगा 4p. हाउ मेनी मोर नीडेड, टेल मी गाइस. कितने आ गए हमारे पास?
4 आ गया, कितना और चाहिए? हाउ मेनी मोर? 2 मोर। Two more. और वो कहां से आएगा? 4D से आएगा, ठीक है। दिस इज 4D। अब 4D का सारा नहीं लेना है, यू हैव टू टेक S P एंड 4 का D। अब यहाँ Sir, पे जो but आपके पास है, in this we have to know whether it is diamagnetic or paramagnetic. यस करेक्ट, यही इसका लिमिटेशन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की यही लिमिटेशन है। अब दूसरी चीज हम आपको बताते थे, अगर किसी के स्कूल में हुआ है और स्कूल में टीचरों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर ही स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड टाइप के वर्ड्स यूज कर लिए हैं, देन दैट इज रॉन्ग फ्रॉम देयर साइड। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का कोई क्लासिफिकेशन नहीं, ये सारी चीजें लिमिटेशन है। वी विल सी इन द लिमिटेशन दैट इट डज नॉट क्लासिफाई इनटू स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड। और Sir, so लिमिटेशन अब mostly they will ask only this question, this two compounds or any other also they'll ask. नहीं, वो सारे कराएंगे ना हम, ये जरूरी नहीं इतना ही कराएं। ऑल्सो वन मोर थिंग कि ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ट्रीटमेंट इस तरह से आपको करना है, वो चीज आपको हम बता रहे हैं। वेदर समथिंग इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक वो आपको जरूरी नहीं हर सवाल में बताए, बट आई विल टेल यू कि कैसे करना है, बट दैट विल बी आफ्टर वी आर डन विद CFT। CFT की इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें ना, इसको छोड़ दीजिए आप, ये आपको पता चल जाएगा वंस दी क्लास इज डन। आप लिगेंड देख के बता देंगे कि वेदर इट इज गोइंग टू बी पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, वो हम अभी ही बता देंगे आपको, ठीक है ना, थोड़ी देर बाद। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, कितने ऑर्बिटल चाहिए आपको, नहीं चाहिए। सो हियर इफ यू सी इट इज sp3d2, sp3d2। पुराने केस में क्या था? D2sp3। सो इन वन केस वी आर यूजिंग द डी सबशेल, इनर डी सबशेल, अंदर का 3D inner D subshell, and in some cases we are using outer D subshell. So from this particular classification, compounds, coordination compounds are classified into two different types: inner orbital complex and outer orbital complex। ठीक है, D2sp3 हुआ तो inner, sp3d2 हुआ तो outer, वो लिखा दिया जाएगा, बट प्लीज राइट दिस डाउन नाउ। अब ये फिर सेम चीज आप कर लीजिएगा sp3d2 के बाद 6NH3 बना के। देखिए कहाँ पे पेयरिंग होगी नहीं होगी उसकी चिंता आप ना कीजिए, है ना। पेयरिंग होने के बाद क्या हो रहा है और पेयरिंग होने से पहले क्या हो रहा है उसको आप देखिए। पेयरिंग होना नहीं होना तो बहुत आसान चीज है, ठीक है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, वो पता लग जाएगा आपको, उसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। चलिए प्लीज राइट दिस डाउन, रेज योर हैंड वंस डन। So can you scroll up just once? कहाँ तक लेकिन? You know the way you wrote how to do it, you wrote the steps, right? Just one minute. Just Yes, sir, you can scroll back down. see all of these questions that we are doing in valence bond theory, no, we will be revisiting these questions once again after we are done with crystal field theory, ठीक है। उस टाइम आई विल टेल यू गाइस दैट हाउ यू हैव टू डील विद these type of problems। बस ऊपर की चीजें जो है यहाँ से यहाँ तक दिस विल बी सेम, और यहाँ से यहाँ तक ये भी सेम होगा। ये जो पार्ट है ना अभी आप लोगों ने लिखा है ये चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, बस ना, दैट पेयरिंग कहाँ पे हो रही है नहीं हो रही है उसके बारे में बस चेंज हो जाएगा। तो नॉट इवन दिस वैलेंस ऑर्बिटल, ये भी सेम रहेगा, ओनली दिस पार्ट ये जो है ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। वहां पे हम लिगेंड के बारे में लिख देंगे ना, यहाँ पे तो हम लिखेंगे ना सिंस कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, but we will write down later on that since fluorine is weak field ligand, therefore no pairing will take place, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। So at the end, right, why do we write 6NH3? We don't have to include हाँ, fluorine on it. नहीं माय बैड, वो हमने ऊपर से कॉपी पेस्ट कर दिया ना, वो सब ऊपर Yes, sir. NH3 था, Yes. सॉरी F नेगेटिव होगा यहाँ पे। इसकी देखिए ये नेसेसरी तो हम नहीं कहेंगे कि ये नेसेसरी है, लेकिन
आई हैव सीन मेनी पेपर्स ना टॉपर्स के, तो उसमें सीबीएसई जो रिलीज करता है तो उसमें जनरली सब में ये चीज थी मौजूद। Please raise your hand once you're done. Waiting for Aliza and Fadil. See you guys. Right now we have seen that अगर हम coordination number 6 की बात करें, ठीक है, so in coordination number 6 आपके पास there are two type of hybridization we have seen. It can be either D2sp3 or it will be sp3d2. Yes, okay. या तो ये D2sp3 होगा or it will be sp3d2. Now this D2sp3, it is known as inner orbital complex. ठीक है, और इट इज जनरली लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, दैट मींस इट हैज लेस नंबर, यहाँ पे पहले सबसे पहले लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड जनरली और यूजुअली electrons are paired, and that is why it is low spin complex, and that means there are less number of unpaired electrons, और इसको spin paired complex भी बोलते हैं, spin paired complex, ठीक है। sp3d2 is known as outer orbital complex, outer orbital complex। यहां पे अगर हम देखें तो यूजुअली electrons are unpaired and इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और एक और नाम होता है इसका स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, है ना, स्पिन वहां पे फ्री है, पेयर्ड नहीं। अच्छा, ऑल्सो वन मोर थिंग, एक चीज और लिख लीजिएगा, डेफिनेशन के एतबार से अगर हम बात करें, इफ आई टॉक अबाउट द डेफिनेशन, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इफ inner, that is n-1d orbital, is used in hybridization। ठीक है, अगर D2sp3 की बात करें, देखिएगा, देखिए द आउटर मोस्ट शेल इज क्या, 4, और ये D कौन सा यूज हो रहा है, 4-1 ना, n-1 वाला यूज हो रहा है, 3D, राइट। तब हम क्या बोलेंगे, दैट इट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे कौन सा होगा, इफ
आउटर मतलब एन डी, यानी कि जो एस का होगा शेल वही पी का और वही डी का होगा। एन डी ऑर्बिटल is used in hybridization, is used in hybridization. Please write this down. और इसके बाद एक चीज शायद आप लोग को याद आ जाए, पुरानी चीज, मैग्नेटिक मोमेंट। इसको डिनोट करते हैं म्यू से। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? म्यू इट इज इक्वल टू रूट ओवर एन इंटू एन प्लस वन बोर मैग्नेटॉन। एक सेकंड, एक सेकंड, एन प्लस टू, माई बैड। इसको चेंज कर लीजिएगा प्लीज, इट इज एन प्लस टू। बिट कंफ्यूज देयर। एंड प्लीज, अच्छा एन यहाँ पे लिख दीजिए, एन इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बीएम इज द यूनिट, बीएम का मतलब होता है बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, आई होप यू हैव रिटन टिल हियर। देखिए इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं एफ ई के लिए। ठीक है, फॉर एफ ई एच टू ओ होल सिक्स एंड एफ ई सी एन सिक्स, दो केस देखेंगे, एफ ई एच टू ओ होल सिक्स एंड हियर वी आर हैविंग टू पॉजिटिव वर्सेस एफ ई सी एन एफ ई सी एन CN6 and the charge will be 4 नेगेटिव, है ना? हाँ ठीक है। एक ना हम आपको शॉर्टकट बताते हैं, सीनॉक्स।
C का मतलब कार्बन डोनर, सो ligands in which carbon is the donor atom. N का मतलब the ligands in which nitrogen is donor atom. O का मतलब oxygen is donor atom. And चल ये हटा दो भाई, सीनॉक्स ऐसे ही लिख लो, यहाँ पे एरो छूट गया मेरा, ठीक है, सीनॉक्स। तो इन सीनॉक्स कार्बन की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है पेयरिंग की, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। सो अब यहाँ पे देखिए, आप लोग देख के बताइए, सीनॉक्स देख के बताइए, ठीक है। धीरे धीरे आई विल बी गोइंग टू डिटेल, जैसे जैसे हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की तरफ आएंगे, सो एग्जैक्टली लिगेंड्स के हिसाब से वी विल राइट। बट लुक एंड टेल मी कि किसके पास पेयर कराने की टेंडेंसी ज्यादा है, वाटर के पास या फिर साइनाइड के पास, विच हैज मोर टेंडेंसी टू पेयर द इलेक्ट्रॉन्स। सोचिए कि Cyanide. साइनाइड में ना, ठीक है, तो वही होता है यहाँ पे भी कि FeH2O जो है ना, इट इज फाउंड टू बी पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे पैरामैग्नेटिक, और यहाँ पे डायामैग्नेटिक दिखा गया है, ठीक है। तो सीनॉक्स के हिसाब से आप याद रख सकते हैं, जब भी आपके पास कंपैरिजन आए, व्हेन यू गेट एन इंडिविजुअल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो वहां पे भी जनरली स्पीकिंग जो कार्बन वाले हैं, तो ये तो हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड, मतलब दे विल ऑलवेज पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल। नाइट्रोजन कभी कभार करता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बहुत रेयरली करते हैं, ठीक है, दे रेयरली पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन हमेशा, तो कार्बन के लिए हमेशा चलिएगा साइनाइड, देन यू हैव साइनाइड के बाद हो गया आपका कार्बोनिल। तो बोथ ऑफ दीज, ये दोनों हमेशा पेयरिंग कराएंगे, ठीक है। तो हियर इफ वी सी व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट इन बोथ द केसेस, तो यहाँ पे x हो गया, दिस विल बी 0, तो यहाँ पे तो Fe के लिए क्या हो जाएगा, इट विल बी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहाँ पे भी अगर हम बात करें, तो इट विल बी -1, 6 इंटू -1 -4, बचा कितना, -2, है ना। तो माइनस मतलब +2 बचेगा, -6 उधर जाएगा, तो सो Fe का यहाँ पे भी +2 आ जाएगा, यू कैन चेक द ऑक्सीडेशन स्टेट। इन बोथ द केसेस अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, then the electronic configuration in both the cases will be argon 4s0 and 3d6, करेक्ट है गाइस, जैसा नो प्लीज टेल मी, Yes, sir. सही है। अब लेकिन जो चेंज आएगा ना, इट विल बी इन द डी सबशेल, यहाँ पे एक जगह पेयरिंग होगी और एक जगह पेयरिंग नहीं होगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 ना, यहाँ पेयरिंग तो होगी नहीं, एंड यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, 4 और एक 5, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स विल बी 1 2 3 4 5 6। अब यू कैन सी हियर कंप्लीटली कि द D3D इज फिल्ड, और यहाँ पे 3D में 2 ऑर्बिटल खाली है। एंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन बोथ द केसेस, कोऑर्डिनेशन नंबर इज आल्सो इक्वल टू व्हाट, कोऑर्डिनेशन नंबर इट इज इक्वल टू 6, यानी कि इतने ही वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए। सो इस केस में तो आपको 3D में नहीं मिलेंगे, तो आपको आगे जाना पड़ेगा, दैट मींस हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, विल बी sp3d2, और यहाँ पे हो जाएगा d2sp3। इसके लिए हम बोल सकते हैं दैट दिस इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, दिस इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, दिस इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बिकॉज ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बिकॉज यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस, यस और नो प्लीज टेल मी, समझ में आया नहीं आया, ऊपर से उड़ गया क्या, समझ में आई बात, Understood, टेल मी, sir. अंडरस्टूड ना। सेम चीजें हैं, बट अगेन ये सारी चीजें आपके पास MCQ में आ सकती है, तो आपको शॉर्ट में भी करने थोड़ा आना चाहिए, ठीक है। चलिए प्लीज राइट दिस डाउन, इसके बाद झट से हम लोग एक और देखेंगे, जिसमें 4 लिगेंड आ रहे हैं, in which we are having 4 ligands. ये दोनों के लिए कॉन्फ़िगरेशन, बट यहां पे आपके पास नो पेयरिंग, और इधर जा रहे हैं आप तो पेयरिंग हो रही है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों केसेस में ना कॉम्प्लेक्स जो बनेगा, ज्योमेट्री इन दोनों की ही ऑक्टाहेड्रल होगी, ठीक है। ज्योमेट्री इज नॉट गोइंग टू चेंज, बट हाँ, हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का लोचा रहेगा। रेज योर हैंड वंस यू डन, जल्दी लिखिए, इसको लिख लीजिएगा सीनॉक्स वाला।
जल्दी लिखिए गाइस, अलीजा, फादल एंड मीर वेटिंग फॉर यू गाइस। ठीक है, ध्यान दीजिए जरा। अगला सवाल, वी हैव निकल Cl4 2 नेगेटिव, और दूसरा है हमारे पास वर्सेस निकल CO4 2 पॉजिटिव। अब जरा बताइए, सीओ ना लेके अगर हम एक काम करते हैं, सीओ मत लीजिए, सॉरी सीओ मत लीजिए, सीओ में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम नहीं होगा। CN ले लीजिए और 2 नेगेटिव कर लीजिए। ठीक है, CO नहीं होगा, CN 2 नेगेटिव। ठीक है, अब थोड़ा सा सीनॉक्स लगा के बताइए कहाँ पे पेयरिंग होगी, फर्स्ट में या सेकंड में? पेयरिंग कहाँ पे Second. होगी? सेकंड में पेयरिंग होगी, है ना। और ऐसा ही होता है, दिस इज फाउंड टू बी Cl4 को अगर आप देखिएगा, then it is found to be paramagnetic, और वो जो है diamagnetic पाया गया है। ठीक है, this is paramagnetic, this is found to be diamagnetic. Now again, if you take the oxidation state, तो 4 -1 होता है ना, तो 4 -2 यहाँ पे +2 आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे भी +2 आ जाएगा, because cyanide is also -1. Then निकल के हिसाब से निकल +2, Ni+2, what will be the electronic configuration guys, tell me? निकल 2 पॉजिटिव, बोलो भाई। आर्गन 4s0, 3D में कितना कितना 3D में कितना? जल्दी भाई जल्दी, इतना टाइम नहीं लगेगा। शक्ति विक्रमन फेकोनिकुजन कर दो, बिल्कुल शक्ति विक्रमन फेकोनिकुजन, फेकोनी फेकोनी, बोलो भाई। अरे बाप रे, इतना टाइम लगेगा? फेकोनी, फेकोनी, 8. हाँ D8। वेरी गुड रजिता। देखिए, जब तक आप इस फ्लो में नहीं आएंगे ना, वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बना रहेगा आपके अंदर, केमिस्ट्री को लेके और खासतौर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लेके। ये चीज क्विकली, लाइक इट शुड बी ऑन द फिंगर टिप्स, ऐसा कोशिश करने से ही होगा। जल्दी आपको देखना है कि अच्छा पेज में कहाँ देखे, अच्छा ठीक है, D8 +2 निकल 3D8 ना, 2 निकल दिया D8। ठीक है, इस तरह से रहना चाहिए। ठीक है, until unless you are going to cultivate this, प्रॉब्लम्स आते रहेगी केमिस्ट्री, अटकते रहिएगा बार बार। और वही चीज ना बहुत नुकसान देती है केमिस्ट्री में, अटकना। जहां अटक रहे हैं आप उस चीज पे मेहनत कीजिए सर। ठीक है, अभी वो छोटी छोटी चीजें रहेंगी, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं आ रहा है, बाकी सब कुछ आता है सर हमको, ऑक्सीडेशन स्टेट, अरे भाई तो उसी में मेहनत करो, वो पहले देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आना चाहिए। कोऑर्डिनेशन में समझ ही नहीं आ रहा Cl4 में क्या ले हम। ठीक है, तो यहाँ दिक्कतें आएंगी, उन चीजों को प्लीज फोकस करके ठीक किया कीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आते हैं नाउ D8। D8 की अगर हम बात करें तो इन दोनों के लिए कॉमन D8 हम बनाते हैं, उसके बाद फिर पेयरिंग और नॉट पेयरिंग के हिसाब से बनाया जाएगा। 1 2 3 4 और 5। D8 बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सर पेयरिंग कैसे हो गया? तो उतना तो करना पड़ेगा ना पेयरिंग, यस और नो गाइस, टेल मी। उतनी पेयरिंग तो करनी पड़ेगी। अच्छा, इन द पैरामैग्नेटिक केस पेयरिंग होगी नहीं, नो पेयरिंग, दैट इज व्हाई इट विल बी एज इट इज। इसको एज इट इज रख देंगे, वी विल कीप दिस एज इट इज बिकॉज देयर इज नो पेयरिंग। कौन से केस में? निकल के Cl4 वाले केस। नाउ इन द केस ऑफ Cn वी विल डू पेयरिंग, तो थोड़ा सा चेंज होगा अब यहाँ पे, है ना। सो पेयरिंग में क्या होगा, दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स विच आर अनपेयर्ड, इसको भी अंदर लेके जाया जाएगा, दिस इज पेयर्ड। अब पेयरिंग में इन बोथ द केसेस द कोऑर्डिनेशन नंबर इट इज इक्वल टू 4, तो 4 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए। सो यू कैन सी यहाँ पे कोई वेकेंट है नहीं, एंड दिस इज 3D एंड दिस इज ऑल्सो 3D। इन Cl4 3D के बाद कौन सा वेकेंट ऑर्बिटल मिलेगा, बताइए गाइस, टेल मी, बोलो भाई। 3D के बाद क्या मिलेगा वेकेंट? अरे रे रे, तब से करते आ रहे 4s. हैं। 4s, वेरी गुड। उसके बाद वी नीड 3 मोर ना, 4s, उसके बाद 4p। देखिए, जो लोग बोल नहीं रहे ना उनको दिक्कतें होंगी यार, हमको वही तकलीफ हो जाएगी फिर, है ना। 4s के बाद 4p मिल जाएगा, सो दिस विल बी वांट sp3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एंड अब यहाँ 3D के बाद 3D का एक तो मिल गया हमको, उसके बाद हमको चाहिए एक s का, 4s, एंड देन आई नीड 2 ऑर्बिटल्स फ्रॉम द p के 3 नहीं चाहिए, वी नीड ओनली 2, बिकॉज एक हमारे पास है, एक 4s से मिला और p के 2 ऑर्बिटल। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट अ हाइब्रिडाइजेशन दैट इज dsp2। sp3 से आपको मिलेगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर,
See, the hybridization has changed. That is why the geometries are also changing. BsP2 से आपको मिलेगा square plane. ठीक है, please write this down. Raise your hand once you're done, and once you're done, please go to the Learnivio app. There you will see that assessment is activated. CNOX याद रखिएगा, ठीक है ना? CNOX tendency, then nitrogen, then oxygen, and then halogen. Carbon तो always मानेंगे. It is always strong field ligand. To be always carbon donors, cyanide and carbonyl, CO, CN and CO. These are always strong field ligand. Write this down. Please raise your hand once you're done, guys. सबको समझ में आया ये? Yes or no? Tell me. ये भी यहाँ पे